اور بڑی لڑائی ہوتی رہی اسلام آباد میں. کیا صورتحال رہی؟ بہت شکریہ زید ملک صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. یہ جو آج کی صورتحال ہے جی یہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کافی دیر سے, کیونکہ جو وکلا ہیں وہ تیاری کر رہے تھے اور گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ ماضی کی طرح شاید وکلا اس دفعہ بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں گے, لیکن حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اور پھر جس طرح سے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ججز کو لایا جا رہا ہے, 15ویں نمبر کے جج کو لا کے بلوچستان ہائی کورٹ سے اور اس کو اسلام آباد میں چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جا رہا ہے. تو اس میں وکلا نے تو بڑا اعلان کر رکھا تھا بڑا پہلے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم جوڈیشری پہ جو نقب لگا رہی ہے گورنمنٹ اس کو نہیں لگانے دیں گے. ویسے تو وکلا نے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کہا تھا کہ ہماری لاشوں پر سے یہ ترمیم ہوگی, اور کہا تھا کہ ہماری لاشوں پر سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہے وہ ختم کیے جائیں گے, لیکن 26ویں ترمیم بھی ہوئی, سپریم کورٹ کے اختیارات بھی ختم کیے گئے. تو جو سوشل میڈیا اس پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی وکلا کے کردار پہ. تو اب ایسا لگتا ہے جی کہ وکلا جو ہے وہ انہوں نے اپنی تحریک شروع کر دی ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس تحریک میں مزید تیزی ہوگی. آج چونکہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اور ججز کا فیصلہ ہونا تھا, اس لیے آج وکلا یہاں پہ آئے ہیں, بڑی تعداد میں آئے ہیں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کراچی, لاہور سمیت دیگر شہروں سے بھی وکلا یہاں پہ آئے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں یہ ایک بڑی تحریک کا آغاز ہے جی آج. ٹھیک ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی تحریک کا آغاز ہے آج. ہمارے پاس سیدہ حفظہ بخاری صاحبہ بھی موجود ہیں, میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ ظاہری بات ہے قانون دان ہیں, وکیل ہیں, اور یہ احتجاج وکلا کے احتجاج کو کس وجہ سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے آن لائن لیا. ملک صاحب میں اس میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی تحریک, کوئی بھی احتجاج جو ہے اس کی کال جو ہے وہ وکلا تنظیموں کے جو نمائندگان تنظیمیں ہوتی ہیں, ریپریزنٹیٹیو جو کونسلز ہوتی ہیں, اسپیسیفکلی جو پاکستان بار کونسل ہے اور پنجاب بار کونسل ہے, یہ ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی بھی پروٹیسٹ کی, اسٹرائک کی کال دیں گے. دیکھیے ہر چیز کا ایک میکانزم ہے, ایک ڈسپلن ہے. تو پاکستان بار نے اور باقی جو بارز ہیں انہوں نے تو اس طرح کی کسی بھی کال جو ہے اس کا انیشیٹو نہیں لیا. اور اگر خالی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں یا ایک خالی گروپ کے لوگ اپنی پولیٹیکل جو ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے اگر وہ کسی قسم کی کال دیتے ہیں تو اس میں تمام وکلا شامل نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ احتجاج اگر کرنے والے کوئی وکلا ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں, تو اس طریقے سے تحریکوں کا آغاز نہیں ہوتا ہے. ہم کسی بھی ایڈونچر ان کے متعلق پاکستان میں پہلے آلریڈی آپ دیکھیں کہ بات ہے کہ ڈپینڈنسی آف کیسز اتنی زیادہ ہے, اور اگر خود یہ جو کالز دے رہے ہیں یہ خود جب آتے ہیں روسٹر پہ تو یہ کہتے ہیں کہ پیڈنسی آف کیسز بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ جو ہے بلک میں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے لوگوں کے, جس سے عام لٹیگنٹ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, تو نمبر آف کورٹس جو ہیں بڑھائی جائیں. تو جب اگر نمبر آف کورٹس بڑھائی جا رہی ہیں, آپ بہت سینئر قانون دان ہیں اور آپ وکلا سیاست کا بڑا اہم حصہ بہت عرصے سے ہیں, اور آپ ساری چاہے ہائی کورٹ کی سیاست ہو چاہے جو ہے وہ سپریم, ساری جگہوں پہ آپ بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں, اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں یہ خاص وکلا کا طبقہ ہے, صرف وہ کر رہا ہے سب. میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی کال کی کسی بھی پروٹیسٹ کی کال آئے گی اس کا ایک پراپر میکینزم ہے. وہ کون دے گا, وہ کال کی اگر آپ اسٹرائک کی کال ہے اس کو کون اناؤنس کرے گا؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ خود سے کال اناؤنس کریں, اس کے لیے پاکستان بار کونسل اور جو ان کی صوبائی بار کونسل ہے, پروونشل بار کونسل ہیں, وہ پروٹیسٹ کی کال دیتی ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس صورت میں جب پاکستان بار کونسل نے اس کال کو جو ہے وہ ڈس آن کی ہے, کیا اس صورت میں وکلا کا احتجاج کرنا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو نمائندگان ہیں, جو آپ کی کا ایک پورا ڈسپلن ہے نا, ایک پورا میکانزم ہے, اس کو آپ فالو نہیں کرتے. پھر تو ہر کوئی اپنی
सोच के मुताबिक जो है उसका अपना अगर एक अपना नजरिया या सोच बन गई है तो वो उसके मुताबिक अमल करेगा। देखिए ये जो भी तहरीकें चलाई जाती है किसी कॉज के तहत चलाई जाती है जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद होता है। अगर तो मकसद ये है कि मैं ना मानूं तो फिर तो ऐसे तहरीकें नहीं चलती। पीका एक्ट के बारे में अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पीका एक्ट पे तो आज लॉ मिनिस्टर साहब का बयान है कि इसको हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठ के इस पे निगोशिएशन कर सकते हैं। कोई भी कानून हरफे आखिर थोड़ी ये पार्लियामेंट का काम है, अगर वो देखेगी कि विल ऑफ पीपल नहीं है इसमें तो उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन उसको निगोशिएशन से उसका हल निकाला जाएगा। लेकिन हुकूमत मुकर गई और कोई निगोशिएशन नहीं हुआ, किसी जर्नलिस्ट की बॉडी से कोई निगोशिएशन जो है वो नहीं हुआ और हुकूमत ने बिल्कुल उसी तरह के चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, तो इस तरह से पीका एक्ट बना दिया है। आपने कहा ना कि हुकूमत कह रही है, हुकूमत कहती है और मुकर जाती है, और ये तो पहले कंसल्टेशन तो पहले होनी चाहिए थी। देखिए बुनियाद बना के तो आप उस बात पे तो आप एकदम रिएक्ट नहीं ना करें। अगर एक बात आ रही है कि निगोशिएशन, उन्होंने कहा आज का उनका बयान है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इसको रिविजिट किया जा सकता है। अगर इसमें वो आए तो सही, कन्विंस तो करे ना उसमें क्या चीज जो है वो अनलॉफुल है या जो प्रोसीडेबल नहीं है या जो कि टेनेबल नहीं है, वो आके उसको बैठ के उस पर ट्राई तो करे ना। ये तो नहीं है कि एक कानून बनता है और आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें कि पाकिस्तान में जितना आजादी राय पे किसी भी शख्स को किसी भी वजह के बगैर गिरफ्तार करके 90 दिन तक कोई पास रखे और कहा जाए कि किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं होगा, तो आप नहीं समझते कि कोई रीजन है प्रोटेस्ट की? मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, अगर ऐसी कोई बात है ठीक है, लेकिन इसका एक तरीका कार है कि उसको निगोशिएशन से हल किया जाए, ना कि उसको इंतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, लाठीचार्ज होगा। राजा ज़िया साहब भी मौजूद हैं। राजा ज़िया साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से? हल नहीं होंगे ना, इसके लिए तो आपको बैठ के एक जो है टेबल टॉक पे ये बात को लेके आना पड़ेगा। अगर आप निगोशिएशन के अलावा अगर आप सड़कों पर फैसला करना चाहेंगे तो फिर तो इससे अनार्की फैलेगी। बिल्कुल सही। राजा साहब क्या कहेंगे आप? वो बुकला एहतजाज के हवाले से हिफ्जा बुखारी साहब ने बात की है, वो कह रही है खास तबका है, खास लोग हैं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखें सबसे पहला कल ही एक जमात जो इलेक्शन हुआ था वो सबके सामने था, कैसे हुआ इलेक्शन, क्या हुआ, उस पर ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि क्या कोई सेंसिटिविटी है इस पार्लियामेंट की कि कोई बिल पास कर सके, वो बिल्कुल भी नहीं है। समझदार बंदा है, जो समझता है, जो लॉ को समझता है, अहले इल्म है, उसे पता है कि ये बिल्कुल जो पार्लियामेंट आई हुई है वो किसी के इशारों पे नाचने वाली पार्लियामेंट आई हुई है। तो ऐसे सूरत में कोई भी एक्ट है, रिगार्डलेस वो सहाफियों के लिए एक्ट है, वकला के लिए एक्ट है या फिर हमारी हाई कोर्ट वगैरह या सुप्रीम कोर्ट के लिए एक्ट है, वो काबिल मजम्मत है। सबसे पहले तो उनकी एक लीगल सेंटिटी होनी चाहिए, वो कोई बिल पास करें। अब रहेगी बात, अब मैम ने अभी बात की है जी कि एहतजाज जो वकला कर रहे हैं वो वकला एहतजाज क्यों कर रहे हैं। मतलब अंधे को भी ये बात नजर आ रही है कि 26वीं तरमीम के ऊपर एक बिल चैलेंज हुआ है, फुल कोर्ट ने उसको सुनना है, उसको सुनने से पहले आप अपनी मर्जी के 10 जजेस से सुप्रीम कोर्ट को आप भर रहे हैं। ये कौन सा लॉ कहता है, ये कौन सा मेरिट है जिसके तहत आप अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भर के अपने मुताबिक डिसीजन लेने के लिए आप सारी कार्रवाई कर रही हैं। अगर इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, वकला या फिर जो सहाफी हजरात है अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? बिल्कुल जी, साफी बोल रहे हैं। जैसा डॉक्टर सादिया कमाल साहबा की तरफ भी जाएंगे, वो बताएंगे कि साफी कितना बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं अभी तक, और साफती तंजीमें क्या कर रही हैं। जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर सादिया कमाल, आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी प्लीज आप जरा बताइएगा कि पीका एक्ट के हवाले से अभी राजा ज़िया साहब भी कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि जिद्दोजहद करनी चाहिए, और असेंबलियों के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या असेंबलियां इस काबिल हैं कि वो इस तरह की कोई जो है एक्ट ला सकें या इस तरह की चीजें कर सकें। काफी सारी बात कर रहे हैं। पीका एक्ट जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जब ये लाया गया 2015-16 में, तो इसका मकसद यही था कि आप बात कर रहे हैं उसके लिए ये बेसिकली था कि आपने किस तरह से हैकिंग को और इन चीजों को रोकना है। लेकिन अफसोस ये है कि इसमें उस वक्त तरमीम की गई और तरमीम के बाद एक यूजे कोर्ट में भी गई, और उसके बाद अब इसमें पे जाके शायद रुक जाए, या हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को एक जमहूरियत की अलंबरदार पार्टी समझती है, वो शायद उसके सदर इस पे साइन करने से रुक जाएं। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। इन लोगों ने आनन फानन बहुत ही पीका जो है उसकी तरमीम को हमारे ऊपर जो है वो लाद दिया गया। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम सहाफत की बात कर रहे हैं, सहाफत एक जुल्फ़िकार साहब एक जूस है। ओवरऑल ये पूरी आजादी ज़ाहिर राय पे हमला है। सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे बल्कि ये इंसानी हकूक की पामाली और बुनियादी जो हकूक है उसके खिलाफ लाया गया है। और हम बात करते हैं आईने पाकिस्तान की, तो ये अच्छा इसमें जो शिक है 2R और 26A आप देखें तो वो हमारी जो हमारे यहाँ पर जो हमारा आइन है उसमें 19 जो शिक है वो आजादी इज़हार राय है, उसके हवाले से खुली खिलाफ वर्जी है। और हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक आगाही सेमिनार किया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है कि उनके हकूक क्या है। तो पीका एक्ट क्या है इसके हवाले से भी आगाही हमारी होनी चाहिए, और ना सिर्फ को खड़े हो जाना चाहिए। अब जुल्फ़िकार साहब हमें ये भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि पीका क्या है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, सुबह जब मैं दफ्तर की तरफ आ रही थी तो मैंने देखा कि पार्लियामेंट की तरफ वहां पर फेसबुक पे लाइव दे दूं कि यहाँ पर किस तरह से इस्लामाबाद में सूरत हाल है। मैं फौरन झिझक गई, डर गई, अरे ये ना हो कि मेरे ऊपर टीका लगे। तो अब ये टीका लगा के हर शहरी की जुबान पे तालाबंदी कर दी गई। सहाफी खौफजदा तो हो रहे हैं, आप भी कह रही हैं वो अब बात करने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। किरण आप क्या कहेंगी इस बारे? जी बिल्कुल, एक तरफ तो एहतजाज हो रहा है और दूसरी तरफ मुझे एक चीज़, अगर वकला की बात की जाए, सरकारी मुलाजमीन हैं, सहाफ़ी भी हैं, सब एहतजाज करें, लेकिन आम इंसान के लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो मैं सिलसिले में इस वक्त जो है पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा से कि आप क्या कहती हैं कि जब मेट्रो सर्विस भी बंद है, लोगों के लिए मुश्किलात का भी सामना, एहतजाज भी हो रहे हैं, तो इसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलता। मुल्क पाकिस्तान में तो हर मेरे ख्याल से 3 महीने में 2 महीने में एहतजाज हो रहा था किसी न किसी बात पे, तो हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, चीजों को बेहतर की तरफ क्यों नहीं लेके जाया जा रहा? अच्छा किरण, चूंकि आपकी आवाज टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से कट जाती है, मैं नहीं समझ पाई एंड में जो आपका लफ्ज है ना कि मुश्किलात या हुकूमत क्या कर सकती है, ये मुझे लगता है कि हम सबके शायद माइक खुले हैं तो ये डिस्टॉर्शन भी हो रही है। तो देखिए था कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाती, उनके साथ मशावरत करती, कंसल्टेशन करती और उनसे पूछती कि वो इस बारे में क्या राय रखती हैं। वैसे हमारे यहाँ तो एक राय अमूमन ये भी पाई जाती, हमारे अंदर ही कुछ काली भेड़े भी हैं जो कि बहुत सारे मीडिया मालकान हैं जिनके शायद पे रोल पे होती हैं और उनको लूप में रखा गया और उनसे ड्राफ्ट भी मांगा गया। ये एक अलग बहस है, लेकिन ये एक हकीकत है कि तमाम जो यूजेज हैं इस वक्त, तमाम तंजीमें हैं, एफनीको, सीपीएनई हो, यूजेज हो, ये तमाम इस 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठी हैं कि हम पीका एक्ट तरमीम के सख्त खिलाफ हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं और हमारी जो जिद्दोजहद है वो सड़कों पे भी आ चुकी है। हम सिर्फ ये नहीं है कि अंदर बैठकर इस पे बात कर रहे हैं, हर एक हमारा सहाफी इस इस्तेहसाल और इस जुल्म के खिलाफ बोल रहा है। और जिन्होंने जो ये साजिश की है, ये हम समझते हैं कि मौजूदा दौर में ये एक बहुत ज्यादा ही बड़ा घिनौना फेल है जिसमें तमाम सियासी जमातें मुलव्वस पाई गई हैं और इनमें से किसी को भी ये नहीं हुई तौफीक कि वो
اس کے حوالے سے کھڑے ہو جائیں کہ آزادی اظہار رائے. اور یہ اب کی بات نہیں ہے, ایوب دور سے لے کے اب تک ہی ایسا ہوتا رہا ہے. صحافیوں کے لیے آزادی اظہار رائے کے لیے قدغنیں ہمیشہ لگائی جاتی رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کرن کہ ہمیں وہ جدوجہد جو ہم دیکھتے تھے, ہمارے جو لیڈرز تھے, مناج برنا تھے, نثار عثمانی تھے, وہ لوگ جب جدوجہد کرتے تھے تو آپ یقین جانیے یونٹی ہم لوگوں میں مسنگ ہے. اور اس ریاست نے اتنی ڈویژن کر دیا ہے کہ اس ڈویژن کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہی نہیں ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ڈویژن کی بجائے اس یونٹی کو ہمیں آگے لے جاتے ہوئے ہمیں حکومت کے ساتھ اس پر مذاکرات کرنے ہوں گے. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم سب لوگ ایک ہو جائیں, یا تمام جو بھی فریق ہیں اس وقت سندھ سے بھی سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے اور عدالت نے دلائل مانگ لیے ہیں, لاہور سے بھی کی گئی ہے, اسلام آباد سے اینکر ایسوسی ایشن ہے, ان لوگوں نے بھی اس پہ پٹیشن دائر کر دی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے ملک سے یہ آواز آنی چاہیے, ہر ایک فرد جس کو بولنے سے, اس کے جینے کے حق سے. اچھا سعدیہ, میرا یہ ماننا ہے کہ احتجاج اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے ہوتے اور کوئی کہیں بھی کسی فورم پر آپ کی بات نہیں سنی جاتی. میرا یہ ماننا ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل کرن, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ احتجاج جس طرح سڑکوں پہ آنا ہے اس کا پہلا اسٹیپ ہے, اور اس کے بعد یہ مسلسل جاری رہنا چاہیے. ہم لوگوں کی آواز پارلیمنٹ تک, وہاں تک جہاں پر یہ سارے فیصلے ہمارے اوپر صادر کیے جاتے ہیں, ٹھوسے جاتے ہیں, اس تک یہ آواز جانی چاہیے. جی بالکل. حفصہ بخاری صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے کہ جو احتجاج وغیرہ ہو رہے ہیں؟ آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ احتجاج, دیکھیں آپ کا احتجاج آپ کا رائٹ ہے, لیکن کس صورت میں احتجاج ہو. اگر تو آپ کا مقصد لوگوں کو پینک کرنا ہے, احتجاج آپ تب کریں گے جب آپ کی سنوائی نہیں ہے. آپ کو خود کہا گیا کہ یہ حتمی نہیں ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا, اور اگر پارلیمنٹ خود کہہ رہی ہے, وہاں کے وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے. دیکھیں کبھی بھی مذاکرات کا نیگوشیشنز کے رستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی قانون بن گیا ایسا کہ جس سے کہ آپ بل آف پیپل لیں گے تو اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انارکی کو پھیلائیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اچھا, ایک اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے, آپ ہر بندہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایک سلوگن اٹھائے پھرتا ہے, جی ہمارا آزادی رائے ہمارا رائٹ ہے, آزادی صحافت ہمارا رائٹ ہے, نو ڈاؤٹ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, لیکن کیا ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے زندگی بسر کرنا یہ بھی تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ بھی تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میرے خلاف کوئی غلط ایلیگیشن نہ لگ جائے اور اس ایلیگیشن کو میں دھوتے مجھے پورا زندگی لگ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے ایک دوسرے کو پولیٹیکلی لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, اور کئی دفعہ مذہبی کارڈ جو ہے مذہب کے نام پہ کئی دفعہ بڑے غلط قسم کی پوسٹ آ جاتی ہے. پھر آپ کئی جگہوں پر اپنے ہی ملک کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی, انٹینشنلی بھی. کئی جگہوں پہ ہم کچھ ایسی باتیں بھی ہماری نظر سے گزری ہیں جو کہ ملک کے لیے اگر آپ وسیع پیمانے پہ دیکھیں تو وہ ایک فیوریبل باتیں نہیں ہیں. اگر ان چیزوں کو کنڈون کرنے کے لیے, ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ایک قانون بنایا جا رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہر جگہ سے آپ کے نمائندگان ہیں. یہ قانون کیا پہلے موجود نہیں تھا؟ پہلے سے یہ بات موجود تھی, یہ قانون موجود تھا, اسی میں کی گئی. دیکھیں ود ان پیسج آف ٹائم جیسے جیسے کرائم کمٹ ہوتے ہیں, جیسے جیسے نئی کرائمز میں انوویشنز ہوتی ہیں, اسی طرح لیجسلیشن میں یہ تو نئی چیز آنی چاہیے. راجہ ضیاء صاحب اور سعدیہ کمال صاحب آپ سے کوئی متفق نظر نہیں آ رہے, وہ کچھ دونوں کہنا چاہ رہے ہیں. تو میں بھی تو ان سے متفق نظر نہیں آ رہی نا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہر چیز کے لیے پروٹیسٹ رستہ نہیں ہے. ہر چیز دنیا کی جتنی بھی جگہ ہوئی ہیں اخیر میں ٹیبل ٹاک پر معاملات جو ہیں وہ سلجھائے گی. اگر تو مار کٹائی, لڑائی, احتجاج یہ کر کے اگر کریں گے تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی بھی اس پہ فروٹفل نتیجہ نہیں نکلا. یہ بڑی بات
ہے کہ ہر چیز کے لیے یہ کہا جائے کہ آئے مل بیٹھ کے دیکھیں. آپ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اسکول آف تھاٹ غلط ہو, ہمارا نظریہ غلط ہو, لیکن ہر چیز کو کنونسنگ سے, نیگوسیشن سے حل کیا جا سکتا ہے, اور تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اپنی اپنی سفارشات دیں, یہ بتائیں تو صحیح کہ کیا مسئلہ ہے. یہ بات کرنا کہ نہیں ہم سڑکوں پہ فیصلے کریں گے تو دیٹ از ناٹ فیئر. جی راجہ ضیاء صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ آپ نے ان کی بات سنی ہے حفظہ بخاری سے؟ جی جی. جو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی احتجاج کی صورت نہیں مانا ہے. اس وقت میں جب نیگوسیشن شروع ہوئی, پہلے احتجاج ہوا, احتجاج ہونے کے بعد لوگ ٹیبل پہ بیٹھے اور پھر ہم بات سنے گی. ادروائز ہم نے تقریباً 100 سال جو ہے وہ غلامی کی ہے. یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ پرسن اسپیسیفک ایکٹ ہے. سوشل میڈیا پہ جو جتنی پوسٹیں چل رہی ہیں, جو بھی معاملات چل رہی ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بنا. اس کے لیے تو وی پی این ہے, اربوں روپیہ لگا ہے وی پی این پہ. وی پی این انٹروڈیوس کروایا گیا, انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا. انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ فرسٹ ایور ان دی ہسٹری آف کسی دنیا میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, وہ پاکستان کی ہوئی ہے. آپ کا جو میڈیا ہے ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. کیوں بلیک آؤٹ ہے؟ کوئی بھی آپ کا میڈیا جو ہے وہ حقائق نہیں دکھا رہا. کیوں نہیں دکھا رہا؟ پرسن اسپیسیفک آپ کے لاز بن رہے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی پیکا ایکٹ کے بارے میں. کل تمام جو درخواستیں ہیں ان کو کنسولیڈیٹ بھی کیا گیا اور ان کے پہ کل سماعت ہے. اگر انہیں کوئی ایشو ہے تو جائے عدالت میں اپنے آرگومنٹ کریں, بجائے جو آرگومنٹ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا سڑکوں پہ کریں, جائے عدالت کو کنونس کریں. جی ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں جائیں عدالت میں جا کے آپ کنونس کریں, سڑکوں پہ بالکل بھی نہ آئے. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ میں جب کنونس عدالت میں سوری میں عام کنونس کر دیں گے عدالت میں جا کے, لیکن جج صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے باہر جائیں گے اور ایک ٹیلی فون پہ بات کریں گے کیا کرنا ہے ساری اس کا, وہاں پہ کیا ہوگا پھر؟ بالکل. اجاز صاحب سارا جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا وہ سم اپ تو راجہ ضیاء صاحب نے بخوبی کر دیا, اس پہ بات کر دی. میں تھوڑا سا میڈم بخاری کے ساتھ احترام کے ساتھ اختلاف رائے رکھتی ہوں. دیکھیں میڈم بخاری, میں خود ذاتی طور پر بھی اور بینگ جرنلسٹ, بینگ یونینسٹ, مس انفارمیشن اور فیک نیوز کے خلاف ہوں. یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت فاشزم کی خوفناک گھنونی شکل کیا ہے. ایک پوسٹ جو کہ زور کارڈ آپ لگاتے ہیں, اس میں جا کے راجہ ضیاء کمنٹس کرتے ہیں, کرن جا کے لائک کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ان سب پہ پیکا ایکٹ لگے گا اور اس کی سزا کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کو 3 سال کے لیے قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ لگا دیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ آزادی اظہار رائے کر نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ اس کی ایک شکل یہ دیکھیں کہ اگر پارلیمنٹ میں بولا جا رہا ہے اس کو حل کو کر لیں گے, انہیں کا بولا ہوا, تو وہ بھی آپ نے اگر دے دیا تو آپ کے اوپر پیکا ایکٹ لگ جائے گا. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ 24 کروڑ عوام, جب میرے ہاتھ میں موبائل ہے, دیکھیں میں اس وقت جب آ رہی ہوں راستے میں یہ ساری آپ کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہے, ایک بندہ آپ کا جو ہے وہ سٹیزن جرنلزم میں آ چکا ہے, صحافی بن چکے, آپ کس کو روک پائیں گے, کس کو پکڑتے پھریں گے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کس حکومت نے اپنے لیے آسانیاں نہیں ڈھونڈی. یہ تو اپنے, جب آپ کی مرضی آتی ہے آپ ان ایکٹ کو, آپ ان قوانین کو اپنی مرضی سے تروڑ مروڑ کے اپنے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں جو بھی آتی ہے. تو اب جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو کر لیا ہے. تو لیکن دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ عدالتوں میں تو جائیں گے, ہم گئے ہوئے ہیں بہت سارے ساتھ, یہ بات نہیں ہے, جائیں گے عدالتوں میں اور ہم اپنا یہ جو بولنے کا حق ہے, ہماری جو فریڈم ایکسپریشن ہے, ہم اس کو چھین کے بھی لیں گے, ہم اس کا حق رکھتے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ دنگا فساد, لڑائی جھگڑے, ڈنڈے میں کبھی کے فیور میں نہیں رہی. الٹیمیٹلی سب کا جو حل ہے وہ مذاکرات ہیں اور احترام رائے کے ساتھ, کہ احترام کرتے ہوئے آپ لوگ ٹیبل ٹاک پہ آئیں. لیکن آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں, پیکا ایکٹ کس کے لیے ہے مجھے یہ بتائیں. اس کا ایک حصہ صحافت ہے, صحافیوں کے لیے, ہمارے لیے. اور جب آپ ہمارے لیے آپ ہی فیصلے کریں گے اور خود ہی ہمارے اوپر ہی لاز لیے جائیں گے تو اس پہ تو یہ ہوگا. سڑکوں پہ جو دیکھیں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, آپ نے چیف جسٹس کی بھی مہم دیکھی تھی جو میں نے جب اس وقت میڈیا میں آئی تھی 2007 میں,
किस तरह से चीफ जस्टिस की इन्हीं वुकला ने, जो आज वुकला सड़कों पे निकले हुए थे, इन्होंने इस तरह से वो पूरी एक कैंपेन चलाई। तो मैं ये समझती हूँ कि इस पे कैंपेन चलाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, और ये मेरा ही नहीं, इन तमाम जो भी जी शऊर है, फिक्र रखता है, सोच रखता है, समझ रखता है, उसका ये हक है। मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप जाए कि वायलेशन करें, सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं, जो सच है, सिर्फ उसको रिपोर्ट करने की और उसकी बात कर रही थी। और इन्होंने जो मैं ये समझती हूँ कि बस इसी के साथ ही आपसे ये कहूंगी कि देखें, इसीलिए कहा गया है कि जमहूर की आवाज को दबाया नहीं करते, लोहे के चने हो तो चबाया नहीं करते। तो अब ये लोहे के चने हैं, इसको चबाना नहीं चाहिए हुक्मरानों को। उनको चाहिए कि वो आए, बैठे, और अभी भी जो हमारे साथी सड़कों पे और हम भी जाएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। मोहतरमा बुखारी साहिबा, पुरअमन एहतजाज की बात करिए, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम इसके लिए बोलें। बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी साहब, पुरअमन एहतजाज डॉक्टर साहबा कह रही हैं जनाब के बिल्कुल सबका हक होता है, और जाहिर बात है। और राजा साहब, आप बात से बिल्कुल एग्री हूँ, पुरअमन एहतजाज हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन किन सूरतों में, देखिए आप स्ट्राइक किन सूरतों में करेंगे, किन सूरतों में एहतजाज करेंगे। आपके पीछे जो आपकी तंजीमें हैं, अब जिस तरह आज वुकला ने एहतजाज किया है, तो अगर वो कर रहे हैं तो उनकी जो बड़ी तंजीमें हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने तो कंडेम किया इस तरह के एहतजाज को। तो आप ये देखिए ना कि अगर या तो सहाफियों की सारी तंजीमें तो बुखारी साहब सारी साथ हैं, उनकी तो एक ही आवाज है। आपने अपने काउंसलर्स के साथ, अपने पैरामीटर्स के साथ चलना है, तो फिर आप उनको फॉलो करेंगे ना। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हर कोई अपने साथ में फिर एक अपना बना के बैठा हुआ है ना कि आप नहीं, मैं ही हूँ। तो अगर आपने एक डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना, तो फिर इस किस्म के एहतजाज की कॉल्स नहीं आनी चाहिए। सहाफियों की तो सारी तंजीमें साथ हैं, और वो एक पेज के ऊपर हैं सारी की सारी, कोई भी इसके हक में अभी तक किसी तंजीम ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्यों डॉक्टर साहब, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, कोई सहाफती तंजीम ऐसी नहीं है, मुझे एक भी नजर नहीं आई जी। एक हुकूमत एक जॉइंट एक्शन कमेटी का ऐलान किया गया, उस कमेटी में को भी शामिल किया गया, एपनिक को भी, CPNA को भी। और मैडम बुखारी, मैं पहले इसका इज़हार कर चुकी हूँ कि इसमें हम में से एक को भी एतराज नहीं है। हम अच्छा, मेरी एक गुजारिश ये है कि व्हेन द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, जब कोर्ट ने ही डिसाइड करना है, तो क्या इस सूरत में, देखिए अभी कल के लिए समाज के लिए फिक्स है, पीका एक्ट के बारे में जितनी दरखास्तें हैं वो सारी समाज के लिए कल हाई कोर्ट में फिक्स है। तो क्या जब मैटर सब जुडिस बिफोर द कोर्ट हो, उस वक्त ला के उसको सड़क पे उसके बारे में कोई भी राय कायम करने की कोशिश करना, क्या ये इखलाकी जवाब पैदा करता है? लेट द कोर्ट डिसाइड। या तो फिर आप कोर्ट में ना जाएं। जब आप कोर्ट में गए हैं तो फिर आपका कोर्ट पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए, अदालतों पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए। ये हमारी अदालतें हैं, ये कोई बाहर की अदालतें नहीं है। तो आप या तो आप एक मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते, फिर आप अगर उस मैकेनिज्म के हैं, अंदर है, देखिए अब ये इल्जाम लगाना कि ये कंट्रोल्ड है, ये है तो हमारी अदालतें ना, एक मैकेनिज्म मौजूद है। तो जब एक अदालतों का एक निजाम मौजूद है, लेट द कोर्ट डिसाइड द मैटर। ठीक हो गया, कोर्ट्स को करना चाहिए, बिल्कुल कोर्ट्स इसको डिसाइड करेंगी भी। रज़िया साहब क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मैं कंक्लूडिंग बात देता हूँ जी। ऑलरेडी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो एहतजाज पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस मंसूर और 2 और जजेस जो हैं वो एहतजाज के ऊपर हैं। वहां पे क्या हालात चल रहे हैं सबके सामने है, किस तरह वहां पे धड़ाधड़ जो है वो जजेस अपने मर्जी के भर्ती किए जा रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में अगर कोई बंदा ये कहे कि हमें कोर्ट पे रिलाई करना चाहिए, कोर्ट के मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है। कोर्ट भी एहतजाज कर रही है, वुकला भी एहतजाज कर रहे हैं, वुकला सहाफी बरादरी भी एहतजाज कर रही है, टीचर बरादरी भी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बस किसी को समझ नहीं आ रही, मुल्क का निजाम जो है वो तबाह हो रहा है। मैं बड़े अदब से ये बात कहूंगी
کہ ऑनरेबल जजेस जो कि एहतजाज पे हैं उनको एहतजाज पे नहीं होना चाहिए, उनके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो वहां बैठ के अपनी जो भी उनका ग्रीवियंस है वो वहां पे बैठ के अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर है उसको रजिस्टर्ड करवा सकते थे। आज भी जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ, उसमें एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव तो चलो मौजूद नहीं है, लेकिन जो जस्टिस साहिबान वहां पे जो जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स हैं वो उनका ना होना जो है ये एक अच्छी अलामत नहीं है। अगर वो किसी चीज से डिसएग्री है तो वो वहां इजलास में मौजूद होकर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि जो जजेस हजरात हैं वो एक बड़ा सीजन जो तबका है और हम उनका एहतराम करते हैं, हमारी अदलिया का एक हिस्सा है। तो उनको जो भी अगर करना है पॉइंट अपना पॉइंट जो है नजरिया पेश करना है वो अपने फैसलों में अपने कमीशन में बैठ के जो है वो उसको करना चाहिए था। तो अगर वो आज एहतजाज पे थे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा पैगाम किया है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। डॉक्टर सादिक कमाल साहब, जी राय साहब जी, कंक्लूडिंग रिमार्क करूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 26 अमेंडमेंट जो हुई है उसके तहत आज जिन 6 जजेस ने हलफ उठा मतलब नॉमिनेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आपको लगता है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट बनेगा जो ये बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने बेनिफिशियरी होकर हलफ उठाया सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो उस अमेंडमेंट का डिसीजन फिर कर सकते हैं? देखिए मेरी अर्ज सुने, चलो अमेंडमेंट्स हो गई, 26वीं तरमीम आ गई, अब तो वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब एक कानून बन गया, एक आइन का हिस्सा हो गया, क्या उसको फॉलो अप करना तमाम इंडिविजुअल्स पर लागू नहीं है? ये तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि आइन की पासदारी जो है वो एक इंडिविजुअल का फर्ज है। हम अपने राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स है मेरा ये फंडामेंटल, क्या आइन के मुताबिक चलना आपका हक नहीं, आपका फर्ज नहीं है? जब एक तरमीम आ गई, अब वो कानून का आइन का हिस्सा बन गई, अब उसके तहत ही हो रहे हैं ना। इस तरह तो कोई ढके छुपे तो ओवर द नाइट तो तैनातियां नहीं हो रही ना, बाकायदा तौर पर उसमें जो रूल्स कमेटी रूल्स बने उनको फॉलो अप किया गया, फिर उसके बाकायदा टाइम दिया जाता है कि फलां तारीख को ये तैनाती होगी। उसमें जो अकॉर्डिंग टू दी अमेंडमेंट्स जो ट्रेयरार बेंचेस में से लोग थे और जो अपोजिशन में से थे उनको लिया गया, सुप्रीम जुडिशियल का हिस्सा बनाया गया और तमाम लोग जो है अपने जितने मेंबरान हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और फिर तैनातियां होती हैं ना। ये तो नहीं है कि उनको सुना नहीं जाता या उनको नोटिस नहीं भेजा जाता कि भाई कल या इजलास है, या उनको इंटीमेट नहीं किया जाता। वो आए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे और उसके मुताबिक सब मिलजुल के जो है वो उसमें कर रहे हैं। अब अगर वो बन गई, तैनाती हो गई, अमेंडमेंट्स हो गई, उसके तहत जो है वो एक प्रोसीजर को फॉलो अप किया जा रहा है, तो क्या गलत है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये आइन के मुताबिक नहीं है या तरमीम में ऐसे नहीं लिखा था, ऐसा हो रहा है। वो तो नहीं हो रहा ना। जो तरमीम में चीज आ गई, जो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके मुताबिक जो है वो आगे से प्रोसीजर जो है वो फॉलो अप किया जा रहा है। ठीक हो गया, आपकी भी बात आ गई। और डॉक्टर सादिया कमाल साहब, मैं आपसे कहूँगा कि आप एंडिंग जो है कंक्लूजन आप पेश करें कि आप क्या कहती हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ। जी सादिया कमाल साहिबा, बताइएगा, प्रोग्राम की जो है एंडिंग की तरफ चलते हैं। एंड पे आप क्या कहना चाहती हो? और खास मेरा जो एक सवाल है आपसे वो ये कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे वकला और सहाफ़ियों के बीच में जो है महाज नहीं खड़ा हो जाता, और बैक वक्त जो है हुकूमत जो है इतने महाज खड़े कर रही है, सहाफ़ी, वकला, फिर अब जो है सरकारी मुलाजमीन भी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए मैडम बुखारी ने यहाँ पर आइन की बात की है। देखिए आइन, और अगर पाकिस्तान के सिस्टम की बात करें तो वो तो सबके सामने है, और जहाँ पर आपने इंसाफ की बात की है तो उस पर मैं क्या बात करूँ। यहाँ पर सबसे पहले खूबसूरत बात राजा ज़ियाद साहब ने कर दी कि जज जो फैसला करते हैं वो किस तरह होता है। तो अब आप खुद बताएं, ये बातें तो मुझे खुद मतलब हमारे खुद के तजर्बात भी यही रही हैं। पहले तो हम कहते थे मुशाहिदात, तो ये तो एक मज़ाक़ खेज बात बन चुकी है। ये बात आपकी ठीक है कि जब आप कोर्ट में जाएं तो आपको इस तरह से एहतजाज और इस तरह से जो कि दंगे फसाद वाले वो नहीं करने चाहिए। लेकिन
पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, और हमारा हक इसलिए है कि हमें यहाँ से क्यों निकाला गया है, हम जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं हमें इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। जहाँ तक आप बात कर रही हैं वुकला और सहाफ़ियों की, इस तरह से देखिए इसमें स्टेक होल्डर्स में सिर्फ वो नहीं आता कि मैं सहाफ़ी हूँ मैं आऊँगी, इसमें वुकला भी आते हैं, इसमें हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग पीका एक्ट तरमीम की के जिम्मे में शामिल होते हैं। इसमें ये नहीं है किसी पे नहीं है। मैं परसों फैसलाबाद प्रेस क्लब गई हूँ, इसी पे जब सेमिनार हमारे PFUJ वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी ने वहां पर रखा है, तो वहां बार एसोसिएशन के सदर आए हुए थे और उन्होंने पीका एक्ट के हवाले से बात की है कि जहां पर भी आपकी मदद हो हम आपके साथ खड़े हैं। और हमने ये अब की बात नहीं, आप माजी में जाकर देखें, कई ऐसी तहरीकें हैं, एहतजाज हुए जो सड़कों पे ही हुए और सड़कों पे आके ही हमने अपने राइट्स की वायलेशन होते हुए देखे और हमने वो मांगी है। हम ये चाहते हैं कि आइन की पामाली ना हो, आइन की पासदारी हो। तो सबसे पहले तो आप पे भी है, आप पे ये तो नहीं है ना कि जब आप खुद आ जाएं तो वो आइन अपनी मर्जी का अमेंडमेंट करके बना लें, जब आप चले जाएं तो दूसरा आने वाला अपनी मर्जी का बना ले वो आइन। तो आइन इस बात की इजाजत नहीं देता, आपका आइन इजाजत देता है कि इस पाकिस्तान की धरती पे हर एक इंसान को बोलने का, रहने का और फंडामेंटल राइट्स का वो फंडामेंटल राइट्स उसको मिलने का बुनियादी तौर पर उसका हक है। तो मैं ये समझती हूँ कि वो उसका हक दिया जाना चाहिए। उसमें ना सिर्फ वुकला, सहाफ़ी, इस माशरे में रहने वाले, चाहे वो उलमा हो, असातिज़ा हो, डेवलपमेंट सेक्टर के हों, किसी भी शोबे से हों, वो सब मिलकर मैं समझती हूँ कि इस जिदोजहद में पुरअमन तरीके से हम बैठे ताकि हम मुज़ाकरात में आए। और उस मुज़ाकरात के जरिए मैं ये समझती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है जब हम इसमें जो तरामीम हुई है, हकीकी मायनों में जो धज्जियां उड़ाई गई हैं आइन की, हम उसके लिए उसका हिस्सा बन सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के जितने भी मेहमान थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि अपने राइट्स के लिए तमाम लोगों को जो है आवाज़ उठानी चाहिए और पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, जिससे मुल्क और कौम को कोई जो है नुकसान ना हो, किसी के लिए कोई मुश्किल ना पैदा की जाए, कोई हर्डल ना हो आम इंसान के लिए। और जहाँ तक रही बात राइट्स की, तो हर शहरी का जो है राइट है, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो कुछ है तो वो जाकर अपने हुकाम बाला से वहाँ जाकर बात करें, क्योंकि हर चीज़ मुज़ाकरात से हल होती है। एहतजाज भी हर चीज़ का हल नहीं होता, लेकिन एहतजाज उस सूरत में किए जाते हैं कि जब आवाज़ें नहीं सुनी जाती। इस वक्त हमारे सहाफ़ी भाई भी बहुत जो है ख़ास तौर पर पीका एक्ट के हवाले से एहतजाज, सरापा एहतजाज हैं, उनकी भी जो है एक टाइम आएगा सुनी जाएगी। कई चीज़ें इस वक्त जो है बहुत इबाहम का शिकार है। एक तरफ जो है वुकला बरादरी है और अब तो सरकारी मुलाजमीन के साथ भी एक नई चीज़ जो है सामने खुलकर आ रही है। तो इस वक्त यही कहना चाहूँगी, मुल्क पाकिस्तान में कई सारे जो जितने भी लोग हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए अपने हुकूक के लिए। और मैं यहाँ पर जो हमारे मौजूदा हुकूमत है उनसे भी अपील करूँगी कि आप थोड़ी नज़रसानी करें। मुल्क के हालात हमने बदलने, हम सब ने मिलकर बदलने हैं। वहाँ पर आपका भी होना ज़रूरी है और हमारे यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं उन लोगों का भी होना ज़रूरी है। और तमाम तंजीमों को, तमाम जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दफ़ा एक होना पड़ेगा, तभी मुल्क के हालात जो हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त मुझे और ZA मलिक साहब को। अल्लाह हाफिज़।